اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا، اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز وزیر مقبول جان کے ساتھ۔ آج کی سب سے بڑی خبر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اہم نکات آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے سنے۔ آخر کیوں یہ ضرورت پیش آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کی؟ کیونکہ کل پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر ہوئی، اور تقریر تھی مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما اور سابق اسپیکر اسمبلی جناب ایاز صادق کی۔ ایاز صادق صاحب نے جنگی قیدی ابھینندن کی رہائی کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کی تردید بھی کی اور اپنا وضاحتی بیان بھی جاری کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے اس بیان کے بعد کہ یہ صورتحال پیش آئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود آنا پڑا اور وضاحت کرنا پڑی۔ اس پریس کانفرنس میں اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ فوج کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ سب ایک ہیں اور بحیثیت ادارہ ایک تھے اور ایک ہیں۔ یہ اہم پیغام تھا، اس پریس کانفرنس پہ بھی آج بات کریں گے، اور ساتھ ہی فرانس کی صورتحال کا بھی ذکر کریں گے کہ خاکوں کے بعد کیا صورتحال ہے اور کیا دنیا بھر میں اس بات کی مذمت کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی پروگرام کے آخر میں عید میلاد کا پیغام کیا ہے اور سیرت کا پیغام کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اہم نکات تھے، آپ نے سنے۔ بھارت نے اس بیان کو اٹھایا ایاز صادق صاحب کے، اور جس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کیا، اور لیکن اس کے بعد ایاز صادق صاحب نے اس کی وضاحت کی جس طریقے سے کی، وہ ذرا سنائیں اور ذرا اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے۔ پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا، جو انہوں نے کیا۔ کل جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ سٹیٹمنٹ دی، اس پہ ہندوستان ٹیلی ویژن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا، وہ میری سٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اور اس کو اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ایک چیز تو کلیئرٹی سے کہہ دوں کہ ابھینندن پاکستان کوئی مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا۔ ابھینندن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب اس کے جہاز کو پاکستان نے یہاں گرا لیا تھا۔ جب پارلیمنٹری لیڈرز کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہونی تھی اور 7 بجے کے بجائے وہ 8 سوا 8 بجے انہوں نے فورن منسٹر کو بھیج دیا، چونکہ ان کی کیا سوچ تھی، وہ کس سے ڈکٹیشن لے رہے تھے، کس ملک سے ڈکٹیشن لے رہے تھے، کیا وہ مودی سے ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ تھے، کیا ان کے اوپر کوئی اور ایسا پریشر تھا، وہ ہم سے شیئر انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ابھینندن کو ہم نے فوراً ریلیز کرنا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے فورن منسٹر کے تھرو یہ کہلوایا، اور جب یہ فورن منسٹر کے تھرو کہلوایا تو عمران خان صاحب کی ضرور ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پسینہ تھا، کیونکہ وہ اپوزیشن کو فیس نہیں کر سکتے تھے۔ اور کیا اس میں منطق تھی، یہ صرف عمران خان صاحب جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی نہیں جانتا۔ ان کا یہ فیصلہ جی، اور یہ صاحب وضاحت بھی حالانکہ انہوں نے دی ہے، لیکن کیا یہ وضاحت کافی ہے جس طریقے سے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بات وضاحت کافی ہے، اور نہ بیان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ابہام ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایاز صادق بول رہا ہے کہ جو سپیکر رہا ہے، انتہائی ذمہ دار پوسٹ، کانڈکٹ آف دا سپیچز کو گورن کرنے والا، ایک ایک لفظ کے مطلب کے اوپر جو ایکسپانچ کرتا تھا، ریمارکس جو بتاتا تھا، مثلا آپ پوری پہلی لائن سنیں، شاہ محمود قریشی کا کہیں ذکر نہیں، جنرل قمر پرویز باجوہ آئے، ماتھے پہ پسینہ تھا، ایگزیکٹلی اگر اتنی سی کاٹ کے انڈیا کا کوئی میڈیا وہاں لگا دے، ختم بات ہوگی نا۔ آپ میں بولوں نا تو پکڑا جاتا ہوں، کیونکہ میڈیا کا آدمی ہوں۔
आम आदमी बोले, कोई बोले, इस तरह स्पीकर अगर इस तरह फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस करे तो इसका मतलब है कि बदयांती शामिल है। पहली बात तो ये है उस्मान साहब कि पाकिस्तान के कानून के तहत फ्लोर ऑफ द हाउस की एक सेंटिटी है। एजाज सादिक साहब ने जो कह दिया है उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकता, ना उनको कोई गद्दार कह सकता है ना कुछ और कह सकता है। दो चीजें यहां पर बयान आती हैं सामने। फ्लोर ऑफ द हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का और फ्लोर ऑफ द हाउस है फ्रेंच पार्लियामेंट का। आप दुनिया के बड़े मीडिया उठा के देख लें, नेशनल इंटरेस्ट की चीज डायरेक्ट नहीं चलाई जाती। पाकिस्तान के 80 चैनल का एडिटोरियल बोर्ड कहां बैठा हुआ था? जो उन्होंने बात तो सिर्फ आई है ना मैदान में कि जब ये चली उसके बाद पब्लिक हुई, उसके बाद ISPR को बीच में आना चाहिए। हर चीज ना दिखाने के काबिल होती है ना लिखने के काबिल होती है, और वो चीज जिसको प्रोटेक्ट किया गया है आइन के अंदर वजाहत उसके नानी ने खत्म किया, बुरा किया करके छोड़ दिया और बुरा किया। सबसे पहली बात तो है कि इस पूरे इंसिडेंट को अगर हम देख लें तो इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जब ये अभिनंदन का वाकया हुआ था, जिस वक्त छोड़ा गया, तो मैं भी थोड़ा सा गुस्से में था। मुझे हर बंदा गुस्से में पूरा था। पाकिस्तान उसमें कि ये क्या कर क्या करते हैं, इतनी जल्दी क्या है? लेकिन उसका जो इंटरनेशनल इंपैक्ट हुआ है उसने तो मतलब आंखें खोल दी ना कि क्या क्या पूरी दुनिया क्या। आप खुद सोचें कि मेरे दोस्त जो थे वो वहां पर रहते हुए इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो कहते थे कि हर चाय वाला जो था उसने अभिनंदन की तस्वीर लगाई हुई थी। अभिनंदन टी स्टॉल, अभिनंदन, यानी तबाह बर्बाद कर दिया। वो चीज जो जंग से नहीं जीती जा सकती थी वो अभिनंदन के एक तो ये चाय पिला के जीत लिया। दूसरी बात यह, अभी वजाहत करते हुए भी फिर कहा मोदी से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। ये मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभिनंदन को मारने के लिए क्या नून लीग से लोग उठ के गए थे या PTI से लोग उठ के गए थे? वो लोग उठ के गए थे कि जिन लोगों ने, देखें जो भी है, मैं सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से और मिलिट्री लीडरशिप से हजार इख्तलाफ चाहिए हो। मुशर्रफ के साथ जिंदगी भर इख्तलाफ रहा, सब कुछ रहा, लेकिन कभी भी उस सेंटिटी को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। मतलब आप मुझे सिर्फ एजाज सादिक साहब 4 घंटे सियाचिन पे गुजार के दिखा दें। मैं हमारे दोस्त हैं, दो बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं जो सियाचिन जाते हैं, बताते हैं साल 1.5 साल जब वहां गुजार के आते हैं, हमें पता लगता है कि क्या चीज रिज़्क़ हलाल कमाया जाता है वहां, कम से कम इतनी बात तय है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है बहुत हायर लेवल पे होती है। मतलब सिविल सर्विसेज के अंदर तो करप्शन पहले दिन से शुरू हो जाती है ना। आप असिस्टेंट कमिश्नर लगे या आप कस्टम के कलेक्टर लगे, आप जा सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये तो करप्शन नहीं करता। कहीं जाके आके मिलिट्री परचेजेस के अंदर कुछ जगह पे आ गए या आगे ऊपर जाके, एनी हाउ उसको भी छोड़ दें। आपने ये बयान देते हुए एक लम्हे के लिए सोचा कि यू आर अ स्टेट विच इज इन एक्ट ऑफ अ वॉर। उस्मान साहब, इंडिया हमारा पड़ोसी ना होता, इंडिया हमारी दुश्मनी ना होती, अब 10 दफा फौज को लोग बातें करते हैं, दुनिया जहान में लोग फौज को बातें करते हैं, लेकिन नॉट एट द टाइम ऑफ द एक्ट ऑफ द वॉर। और ये बातें क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई कर सकता था? क्या फ्रांस की फौज का, इंग्लैंड की, इवन जर्मनी जो हिटलर जो कि मारा जा रहा था, उस वक्त भी हिटलर के साथ थे लोग खड़े हुए थे कि हम मार खाएंगे। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, अब मुकदमा उन पर चल नहीं सकता क्योंकि प्रोटेक्टेड है। लेकिन पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासतदानों को आना चाहिए मैदान में कि ये गलत हुआ, अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। वो तो मुतालबा भी किया है हुकूमत से, और उसकी पार्टी लीडरशिप को कहना चाहिए कि इसने गलत किया। मतलब आज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं पूरे पाकिस्तान। सुबह से मैं सुन रहा हूं कि इसको फलां ने कहा कि ये कर दो, मूवमेंट को तबाह करो, ओ भाई मूवमेंट को तबाह करो। पहली बात है कि जी PTI की, सॉरी PDM को तबाह कर, तो PDM में हमने अब तो निकाला क्यों नहीं इसको? कान से पढ़ के निकाल दो, गद्दार को निकालो। जो गद्दार जो है वो कहने पे, एजेंसियों के कहने के ऊपर स्टेटमेंट दे सकता है, वो तो कल मरियम नवाज को डुबो देगा। तो अब तो निकाला, इसका मतलब यह है कि निकालने वाली बात ही नहीं है बेसिक। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये स्टेटमेंट यहां देना एक नप्पा तुला स्टेटमेंट है।
उम्र गुजरी है सर, पॉजिटिव स्ट्रेसेस को जानते हुए सारा कुछ है। तो असल मसला ये है कि पाकिस्तान का एक वो इवेंट ऐसा था और कि जिस इवेंट ने एक मोरल बिल्टअप किया हुआ। एक दूसरी बात मैं एक और अर्ज करूं, कहा जाता है कि 9 बजे इंडिया ने हमला कर देना है। अभिनंदन की मौजूदगी में उस इंसिडेंट के बाद नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि फौरी तौर पे आप मोरल बूस्टिंग के लिए आएं, क्योंकि अगर आप दोबारा इस तरह की एक शिकस्त ले लेते हैं तो फिर क्या होगा। 10 दफा सिर्फ मिलिट्री टेबल पे बैठ कर सोचा जाता है, और जहां पर आपका एयरफोर्स का सरबराह जो है वो 6 महीने पहले ये स्टेटमेंट दे रहा हो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का इंडिया की एयरफोर्स इसलिए मुकाबला नहीं कर सकती कि हम डिपेंडेंट हैं अमेरिका के ऊपर और फ्रांस के ऊपर, जबकि पाकिस्तान जो है JF थंडर बनाता है चाइना के साथ, और उसकी खूबी ये है कि हमें एक छोटी से पुर्जा लेना चाहें या हम उसको एडवांस करना चाहें या हम उसको इम्प्रूव करना चाहें अपने जहाज को, हम मोहताज हैं, जबकि वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सारी काम जो है वो यहीं होते हैं, कामरा के अंदर होते हैं, वो करते हैं। जब इस तरह, और अब एक और बात बताऊं कि दुनिया में अब जंगें जो हैं 2 चीज़ों की वजह से अब बिल्टअप होती हैं। पहली बात तो यह है कि फिजिकल फोर्स जो है ये आखिरी वक्त पे इस्तेमाल होती है। इट्स बेसिकली ड्रोन एंड एयर अटैक। सही। एयर फोर्स इज द मोस्ट यूजफुल फोर्स। अब देखिए, आप बता सकते हैं ड्रोन इस वक्त दुनिया पूरी में आ गया। अब ड्रोन से पहले आपकी एयरफोर्स था। अब जब आपकी एयरफोर्स की ये कैपेबिलिटी हो कि आप उनके और वो चीखें जाके मारें कि जब राफेल लो, वरना हमारे पास तो तो फिर आप फिजिकल नहीं ला सकते। और फिजिकल फोर्स को आगे लाने का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी वॉर के अंदर आ रहे हैं जो कि खत्म नहीं फिर होगी उसके बाद। दूसरी बात एक और बताऊं, एक बड़ी बहुत गलतफहमी है पाकिस्तान में भी और इंडिया में, हर उस मुल्क के अंदर होती है कि जिनको जंग जो है उनकी घुट्टी में डाल दी गई। दुनिया में जो 199 मुल्क बने हैं ना, ये बनाए गए थे, नेशन स्टेट्स जो हैं इसलिए बनाए गए थे कि यहाँ की जो फौज होगी वो बुनियादी तौर पर इसलिए बनाई जाएगी कि जंग ना हो, दिफा के लिए बनाई जाए। फौज बेसिकली जंग ना होने। अगर आप ये कहें कि इंग्लैंड ने जो फौज रखी हुई है, जो तैयारे रखे हुए हैं, जो स्क्वाड्रन रखे हुए हैं, वो जंग करने के लिए रखे हैं फ्रांस के साथ, तो फिर तो गया वो काम से। या जर्मनी ने जो रखी हुई है, जो फ्रांस ने रखी, क्योंकि अब भी अगर आज आप 2 पार्टियां लड़ना शुरू हो जाएं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पॉप इन कर जाती। जब भी जंग हुई है कोल्ड वॉर के दौरान, वो प्रॉक्सी के अंदाज में हुई है। सही बात है। और वो भी अमेरिका क्यों आया था वियतनाम में? उसने कहा हमें किसने बुलाया है? जनूबी वियतनाम की गवर्नमेंट ने बुलाया है, क्योंकि शुमाली वियतनाम का हो ची मिन्ह जो है वो वहां पर कम्युनिस्ट इनकलाब लेने आए, तो हम उनकी मदद करने आए हैं। सही। रूस जब अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था तो उसने कहा था कि चूंकि नूर मोहम्मद तराके की गवर्नमेंट खत्म कर दी गई है, हफीजुल अमीन आ गया है और वहां पर हिकमत यार वगैरह आ रहे हैं, तो हम उनकी मदद करने वहां पहुंचे। ये था। अफगानिस्तान में आने के लिए उनको 3000 बंदा अपना मारना पड़ा था 9/11 के तौर पे, और ये बताना पड़ा था कि हमारी सॉइल जो है उस पर हमला हो गया, हमें उसका जवाब देना है, और उसके लिए वो अक़वाम मुत्तहिदा चले गए थे। अफगानिस्तान इराक में जाने के लिए उन्हें दुनिया जहान के सामने झूठी चीजें पेश करनी पड़ी थी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में आगे हुए। तो अगर तो आप ये समझते हैं कि जंग लड़ने के ना सिक्योरिटी के एहसास के लिए होती है कि हम सिक्योर हैं सब कुछ, जंग लड़नी जो है ना वो एक और मौजू है। कभी चलो उधर तफसील से बात करते हैं कि जंग किस मुल्क ने लड़ी और उसके बाद उन्होंने हासिल क्या किया। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे फ्रांस की सूरत हाल।